In this video lecture, we are discussing the solid fuel coke. So, the points which we'll be discussing are what is coke, what are the properties of coke, why coke is required, what are its uses, how it is manufactured, how it is prepared. So, we start with that is coke is obtained from coal. Coke is a secondary fuel. It is a derived fuel. So it is derived from coal. So coal with suitable processing or treatment forms coke. Coke is a secondary fuel. It is a derived fuel. Now to convert coal into coke, we start with bituminous coal. So because it is a better coal, quality coal. So, bituminous coal, when it is subjected to destructive distillation, that is DD, gives white, lustrous, porous mass, which is called as coke. So, what is destructive distillation? This we will discuss in next video lectures also. But here, let me explain you that coal is subjected to heating under very limited supply of oxygen, so and continuously for many days. So this process is known as destructive distillation. So this destructive distillation is called as carbonization. So again I say carbonization, it is a process of converting coal into coke. Why it is called carbonization? Because the coke obtained from coal, that is coke, contains more percentage of more amount of carbon than coal. Therefore this process is called as carbonization. So why we require coke? Why can't we just depend on or make our like requirement fulfilled with only coal? Because coal is not sufficient in properties, especially for the metallurgical use. So here are some points. Coke is good fuel. Mainly it is used in metallurgical operations. Therefore, it is sometimes also called as metallurgical coke. So following properties are required for good that is metallurgical coke. One is the porosity, that is percent of ash, percent of moisture, percentage of sulfur and phosphorus should be less as much as possible. So this is the purity. Next is the porosity. Higher is the porosity means the coke will have more surface area. Therefore, it means that it will bring about complete combustion. That means we can obtain a large amount of heat energy. The size of coke obtained should be uniform, that is neither too big nor too small. Strength, that means coke is sufficiently strong. So it should be hard, it should be strong to withstand the, why hardness or strength is required? So as to withstand the weight of the ore, oil, flux, etc. in the furnace. Next is the calorific value. Naturally, the calorific value should be high, and it is definitely high for coke. Reactivity, coke used in for manufacture of water gas, it must be reactive to steam also. Combustibility, coke should burn easily, that is coke obtained by low temperature carbonization are more easily combustible. So low temperature carbonization and high temperature carbonization we'll discuss in the next video lecture. Let me again illustrate you in Hindi. Students, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉलिड फ्यूल कोक. कोक जो है वो एक सेकेंडरी फ्यूल है, डिराइव्ड फ्यूल है. कोक कोयले से, कोल से प्राप्त होता है. तो कोल को सूटेबल प्रोसेस करके, ट्रीट करके हम कोक प्राप्त करते हैं. और कोक बनाने के लिए हम ज़्यादातर बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करते हैं. बिटुमिनस कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का तात्पर्य यहाँ पर है कि कोल को बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन में धीरे धीरे उसको हीट करना या सुलगाना, और ये प्रक्रम चलता है 4-5 दिन या कुछ ज़्यादा दिन और. तो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से
हमें कोक प्राप्त होता है, तो कोयले से कोल से कोक का बनना, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोक में कोल के मुकाबले ज़्यादा प्रतिशत कार्बन होता है। तो कोक एक बहुत अच्छा फ्यूल है और ज़्यादातर इसको मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कई बार मेटलर्जिकल कोक भी कहा जाता है। तो कोक के लिए, एक अच्छा क्वालिटी कोक के लिए, मेटलर्जिकल कोक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली है प्योरिटी, उसमें शुद्धता। तो कोक में जितना हो सके परसेंटेज ऑफ ऐश, मॉइस्चर, सल्फर और फास्फोरस कंटेंट्स जितने कम होंगे उतना वो अच्छी क्वालिटी का कोक होगा। कोक में पोरोसिटी कोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया उतना जितना ज़्यादा होगा उतना कंबस्टन कंप्लीट हो पाएगा, ऑक्सीजन उतनी एब्जॉर्ब होगी और उतना ही ज़्यादा कंबस्टन कंप्लीट होगा। जो साइज़ है वो कोक का हमें चाहिए वो यूनिफॉर्म चाहिए, ना तो बहुत छोटा ना बड़ा। जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, डेफिनेटली हार्ड होता है ये कोयले के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फर्नेसेस में कोक को ऐड करते हैं तो बहुत जो ओर होता है उसका वजन पड़ता है इन पे, ऑयल्स हैं, फ्लक्सेस हैं, हॉट गैसेस हैं, और अगर इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं हुई, मजबूत नहीं हुआ, तो ये चूरा हो जाते हैं और जो पर्पस है मेटलर्जिकल ऑपरेशन का वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। इसलिए कोक को स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। कैलोरीफिक वैल्यू कोक की हाई होनी चाहिए। रिएक्टिविटी, वैसे तो कोक रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कई बार हमें कुछ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में ऐसा कोक चाहिए जो स्टीम से, वाटर से रिएक्ट कर जाए, और ख़ास तौर पे ये वाटर गैस के मैन्युफैक्चरिंग में हम ऐसा कोक यूज़ में लेते हैं। कंबस्टिबिलिटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोक ईज़िली कंबस्टिबल हो जाए, इजीली बर्न हो जाए, और ऐसा होता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन से जो कोक ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है उसमें। तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, ये दो प्रोसेसेस हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में ये जाना कि कोक एक सेकेंडरी फ्यूल है, एक डिराइव्ड फ्यूल है। वो डिराइव या बनाया जाता है, प्राप्त होता है कोल से। कोल से कैसे प्राप्त करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसका तात्पर्य है बहुत धीरे धीरे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन में इसको सुलगाना, हीट करना। और जो कोक हमें मिलता है, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, और जो कोक प्राप्त होता है वो कोल से कई मायने में बेटर क्वालिटी का होता है, और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के लिए वो पूरी तरह से सूटेबल होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होती है, मजबूती, उसमें पोरोसिटी होती है, और उसमें प्योरिटी होती है, यानी कि जो बाकी के वेस्ट एलिमेंट्स या गैसेस हैं वो सब एलिमिनेट कर चुके होते हैं, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, क्योंकि नेचुरली कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी होती है कार्बोनाइजेशन के दौरान। तो इसलिए इसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अधिक होगी, उतना वो फ्यूल बेटर क्वालिटी का होगा, उतनी हीट प्रोड्यूस वो अच्छा करेगा, और हमारे को हीट एनर्जी प्राप्त हो सकेगी विदाउट मच वेस्टेज।